enzymes. So let's go through the learning objectives. So इसमें हमें क्या क्या करना बेटा? We have to talk about enzymes, that they are globular proteins. They catalyze the metabolic reactions. Okay, then we have to discuss that enzymes are they form inside the cell as well as extracellular also. We have to talk about the mode of action, active site, enzyme substrate complex, activation energy, the two hypotheses with it, lock and key, and then Dewey's fit. Investigate the process of enzyme catalyzed reaction. So let's see if we are able to solve this. Okay, side by side we'll talk about the effect of enzymes on temperature, pH, in substrate inhibitor, Michaelis-Menten constant. So let's see if in today's lesson we are able to complete that. Shorter chapter we should be able to do. So let's start with this one. Acha, enzymes bete. So remember, enzymes are globular proteins. Okay, so you can use different terms. You can use the term yes, they are round, they are spherical. Okay, but this is what is used for them. They are globular protein and they have a specific tertiary structure. Okay, and this is their function. They catalyze the metabolic reactions in the living organisms. So jitne bhi biological processes are beta, they are actually being carried out by enzymes, right? So remember the term beta, they are globular protein. Then whenever beta we talk about enzymes, remember there are two types of enzymes, extracellular and intracellular. Now enzymes beta are protein, and if you can recall chapter 1 में हमने पढ़ा था कि ribosome may make protein. ठीक है, तो जो extracellular enzymes है बेटे, they are made by the ribosomes which are attached to the endoplasmic reticulum. ठीक है, those are also known as fixed ribosomes. ठीक है, so extracellular enzymes are formed by the ribosomes attached on the endoplasmic reticulum, because from there beta they are sent to the smooth endoplasmic reticulum, then through the Golgi body beta they are packaged and modified, and then they are sent out of the cell by exocytosis. ठीक है, तो जिन एंजाइम्स को सेल के बाहर फंक्शन करना होता है, they are found there बेटे on rough endoplasmic reticulum. The ones that have to perform the intracellular activities बेटे, they are found from the free ribosomes, the one which are there in the cytoplasm. ठीक है, तो अगर ये सेल है बेटे न्यूक्लियस है, and we have this आपका जो endoplasmic reticulum, so इसके साथ जो attached है बेटे, they are responsible for the extracellular enzymes, and the ones which are free floating ribosome, they will form the intracellular enzymes. And we know right now we are talking about the eukaryotic cells, so both these ribosomes are ATS ribosomes. Is this clear बेटे? Yes. ठीक है, अच्छा यहाँ इन्होंने आपको एक एग्जांपल. जी बेटे, there was a connection issue. अच्छा अभी ठीक है? Is it fine? Did you get it? What we were discussing about the extracellular and intracellular? No, I couldn't hear anything. Acha, theek hai. So I'm starting one more time. So beta, we have two type of enzymes. One of them is known as extracellular. Okay, these are the enzymes that are formed inside the cell, but they function outside the cell. ठीक है, ये बनते कैसे हैं? They are formed from the rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum have ribosomes which are attached on the surface. They make the protein. That protein is then packaged by the Golgi body and then sent out through vesicles. ठीक है, it is ठीक है through the Golgi body बेटे. They are sent out through vesicles by exocytosis. Is this clear बेटे? Is this part clear? ये बनते वहां पर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, but because बेटा इनका function outside the cell है, so they have to be sent outside the cell. They have to be secreted. So Golgi body packages them. ठीक है, vesicles के अंदर then they travel बेटा, and through exocytosis, ठीक है, they are released outside the cell. And better the ribosomes are ATS ribosomes because we are talking about eukaryotic cells. Intracellular enzymes are the enzymes which are formed from the free ribosomes. Free ribosomes कौन से बेटे? The ones that are not attached to the endoplasmic reticulum, they are free floating inside the cytoplasm. इनसे जो enzymes बनते हैं बेटे, they are known as intracellular enzymes. So cell के अंदर जो भी enzymatic activity है बेटे, उसमें these ribosomes are responsible for that. Is it clear बेटे?
ठीक है, okay. So here but they have given you example of an intracellular enzyme. Lysosome is a cellular organelle and it contains digestive enzyme, ठीक है, which is lysozyme. ठीक है, अब इस एंजाइम को सेल के अंदर ही फंक्शन करना है. So this is an intracellular, मतलब this organelle will have intracellular enzyme. ठीक है, तो जिस तरह का फंक्शन होगा उसी किस्म का एंजाइम है. अब ये लाइसोसोम हैज टू फंक्शन ओनली इनसाइड द सेल. ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन्होंने एक सेल दिखाया है. ठीक है, इट हैज दीस लाइसोसोम्स and what they have shown you here, this is a bacterial cell. It is engulfed by the cell by phagocytosis. Once it is engulfed, now the lysosome which contain this enzyme lysozyme will come and fuse with this here. It actually becomes a phagosome. it है जब कोई भी phagocyte किसी बैक्टीरिया को engulf कर लेता है, let me write it there. ठीक है, when any ठीक है बैक्टीरिया और पैथोजन is engulfed, it is known as phagosome. ठीक है, जो वेसिकल बनता है, वैक्यूल बनता है, उसको हम बोलते हैं बेटा फेगोसोम. द लाइसोसोम विल कम एंड फ्यूज विद इट. ठीक है, तो जब लाइसोसोम फेगोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है, वी कॉल इट फेगोलाइसोसोम. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, द लाइसोसोम कंटेन्स दैट एंजाइम, it fuses with this, see बेटा, it fuses with this phagolysosome and then it releases the digestive contents. तो जो भी एक्टिविटी हो रही है वो इस वेसिकल के अंदर ही हो रही है बेटे. ठीक है, जो भी डैमेज होगा इस पैथोजन के इसी के अंदर हो रहा है. ठीक है, इट इज नॉट अफेक्टिंग एनीथिंग आउटसाइड दिस पार्ट हियर. ठीक है, सो और उसके बाद जो भी इसके कंटेंट्स होंगे बेटे, दे विल बी रिलीज्ड आउट ऑफ द सेल. तो ये आपको एग्जांपल उन्होंने दिए इंट्रासेलुलर एंजाइम. ये चीज क्लियर हुई बेटे? ठीक है, अच्छा. अब एंजाइम्स बेटे, ठीक है, वी जस्ट डिस्कस के दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ठीक है, so आपको शेप पता होना चाहिए. they are spherical or you can use the term they are round in shape. ठीक है, now enzymes are generally better large molecules. ठीक है, so hundreds of amino acid make one enzyme and इनका हर एक एंजाइम का बेटा they have a very specific shape. ठीक है, तो accordingly बेटा इनका जो भी सबस्ट्रेट होगा they very specific to it. अच्छा, अब एंजाइम्स के अंदर बेटा डिफरेंट साइट्स होती हैं. they have an active site. एक्टिव साइट बेटा इज द साइट विच एक्चुअली दिस वन हियर बेटे. तो एक्टिव साइट के लिए आप टर्म्स यूज कर सकते हो. तो एक्टिव साइट इज एक्चुअली बेटा अ डिप्रेशन. ठीक है, और यू कैन यूज द टर्म इट इज अ क्लेफ्ट. ऐसा नहीं है कि ये एक एंजाइम है तो जी उसमें एक ये वाली जगह जी एक्टिव साइट होगी. सो यू कैन नॉट से दैट. ठीक है, इट हैज टू बी अ डिप्रेशन बेटे. ठीक है, एक डिप्रेशन है या एक क्लेफ्ट है जिसके अंदर कोई सबस्ट्रेट आके फिक्स होगा. ठीक है, तो यू हैव टू यूज दीज टर्म्स बेटे. The active site is a depression or a cleft on the enzyme, और पूरे enzyme में बेटा it has to be a small area. So जैसे छोटा सा area है, this is the active site बेटा, but see this is a depression here. This is a depression here. ठीक है, तो enzyme अपना size उसका बहुत बड़ा है. ठीक है, but it has, अब जैसे see they are saying hundreds of amino acids make one enzyme, but around 10 of them actually are making its actual active site. So look at the difference बेटे. So it has to be a very small area on the enzyme, but it has to be better in this form. It has to be a depression. It has to be a cleft. ठीक है, तो ये वाला एरिया है बेटा जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट आके लगेगा. सबस्ट्रेट इज एक्चुअली बेटा द रॉ मटेरियल. ठीक है, जो हमारा रिएक्टेंट है, रॉ मटेरियल दैट हैज टू कम and attach with the enzyme and then it has to convert into a product. ठीक है, each enzyme has a very specific individual active site shape which is maintained by a very specific overall tertiary structure. ठीक है, so better remember these terms in. ठीक है, active site is a depression or a cleft. ठीक है, or a small depression or cleft on the enzyme where the substrate comes and attaches. Is this clear better about the enzymes? ठीक है, अच्छा. so यहाँ पे से एक diagrammatic आपको व्यू दिखाया कि this is a substrate और enzyme will be very specific. जैसे यहाँ पे if you look at it better, they have shown you के site of attachment. ठीक है, so you don't worry about this. Simply just remember कि जो अगर एक enzyme see how big is this enzyme, ये पूरी आपको चेंज नजर आ रही है. ठीक है, but this is the active site only, जो आपको ये नंबर्स यहाँ पे शो किए उन्होंने. ठीक है, so this is the active site which is the depression on which the substrate has fit. So यहाँ पे अगर मैं इसको फॉलो करूं तो ये एंजाइम के अंदर डिप्रेशन है और सबस्ट्रेट वहां पे आके फिट हो रहा है और बाकी ये पूरा इतना बड़ा एंजाइम है. ठीक है बेटे,
ओके अब एंजाइम्स के अंदर बेटा दे थ्रू हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हाइपोथेसिस का मतलब है बेटा कि लाइक दो थ्योरीज हैं, ठीक है। कुछ बायोलॉजिस्ट किसी एक थ्योरी को फॉलो करते हैं, कुछ दूसरी को फॉलो करते हैं। द फर्स्ट हाइपोथेसिस इज द लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है। तो लॉक एंड की मैकेनिज्म में दे से कि एंजाइम जो है बेटा इट इज एक्चुअली द लॉक, और जो सबस्ट्रेट है बेटा इट इज एक्चुअली द की, ठीक है। सो दे से कि ओनली वन सबस्ट्रेट विच इज अ की, it fits into the enzyme's active site, ठीक है। So they say कि जो lock and key में enzyme and substrate are actually having complementary shapes, ठीक है, they're complementary to each other। तो जिस तरह का इसका डिप्रेशन होगा बेटा, इसी हिसाब से substrate will come and fix with it। So एक particular substrate होगा that would come and fix here, ठीक है। So they said कि they have this particular shape, अगर इसके अंदर डिप्रेशन बेटा इस तरह का बना हुआ है, तो your substrate also has the same exact shape that can fit into it, ठीक है। तो ये लॉक एंड की में दे सेट के मतलब एक फिक्स शेप्स हैं, दे कम इन फिक्स, ठीक है, एंड दे हैव अ यूनिक शेप। दिस इज अ लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है। सो जनरली व्हाट हैपेंस बेटा, द सबस्ट्रेट कम्स एंड अटैचेस, ठीक है, टू स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक है। वंस इट गेट्स अटैचेस, ठीक है, हमारे पास क्या चीज बनती है, द इंटरमीडिएट जो बन रहा है बेटा दैट इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट यू हैड द एंजाइम अलोन, substrate comes, attaches, ठीक है, and it forms an enzyme substrate complex। इसके लिए हम ESC का टर्म भी यूज करते हैं, ठीक है। and finally बेटा once the reaction happens the product releases। अब for example यहाँ पे substrate आपको एक substrate दिखाया था, ठीक है, it has converted into two products। so depend करता है बेटे। okay बेटे, so we were discussing the hypothesis lock and key। so what do these biologists say, they say कि enzyme जो है बेटे this is the enzyme, ठीक है, एंड दिस इज इट्स एक्टिव साइट, ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। तो एंजाइम एक्ट्स एज अ लॉक और सबस्ट्रेट एक्ट्स एज इज की, ठीक है। तो यू नो के घरों में भी जो हमारी चाबी बेटा एवरी की इज पर्टिकुलर टू वन पर्टिकुलर लॉक, ठीक है। सो दे से के सबस्ट्रेट एंड एंजाइम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर एंजाइम में इस किस्म की डिप्रेशन है या इस किस्म का क्लेफ्ट है, द सबस्ट्रेट वुड हैव द सेम शेप दैट वुड कम एंड फिट एग्जैक्टली इनटू दिस एरिया, ठीक है। दिस इज द लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है। सो दे से बोथ द स्ट्रक्चर्स हैव यूनिक शेप व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, वंस द सबस्ट्रेट कम्स अटैचेस हियर, ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट फॉर्म्स इज नोन एज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर जब ये फिक्स हो जाता है वी कॉल इट एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ESC, ठीक है। वंस द रिएक्शन हैपेंस बेटा, बिकॉज एंजाइम का काम क्या है, टू कैटलाइज द रिएक्शन, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो अब ये सबस्ट्रेट, अभी एक सबस्ट्रेट था बेटा, इट हैज कन्वर्टेड टू टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तब ये डिपेंड करता है बेटे, इट कैन बी कि आपके पास टू सबस्ट्रेट्स आ रहे हैं और वो ज्वाइन होके एक प्रोडक्ट बन गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दी है, वन सबस्ट्रेट, ठीक है, हैज कन्वर्टेड टू टू प्रोडक्ट्स। तो लॉक इन की मैकेनिज्म समझ आ गया बेटे, ठीक है। सेकेंड जो हाइपोथेसिस है बेटे दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट। Induced fit में they say कि substrate बेटा when it comes and gets attached itself to the enzyme, it actually बेटा the enzyme goes some conformational change। तो इसमें यह है कि substrate का जो बेटा shape है it is not exactly the same। अगर तुम यहाँ पे देखो enzyme की जो depression है it looks a little bigger और substrate छोटा है, ठीक है। तो induced fit ये कहता है कि it occurs because when the substrate comes and attaches itself to the enzyme, it causes some conformational change in the enzyme itself, ठीक है। तो एंजाइम के अंदर कुछ चेंजेस पैदा हो जाती हैं, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस बेटा, एंजाइम देन एक्चुअली बेटा रैप्स इट अराउंड द सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल अगर ये चीज है, ये आके इसको लगेगा, तो सी बेटा इफ यू लुक एट दिस डायग्राम एंड देन यू फोकस हियर बेटा, तो इट रैप्स इट अराउंड द सबस्ट्रेट, इस तरह की अपनी अपनी शक्ल ही चेंज कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड। इंड्यूस का मतलब है बेटा कोई चीज सबस्ट्रेट या कोई चीज लगने की वजह से something else happens, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो when substrate comes and attached to it, ठीक है। the same thing will happen, you will have the enzyme substrate complex, you will have the same products release, but जैसे ही products release हो रहे बेटा सी enzyme comes back to its original position, ठीक है। तो induced fit में क्या हो रहा है, when an enzyme and substrate they form a complex, structural changes occur। structural changes कहाँ पर आ रही है बेटा, they're happening on the level of the enzyme, ठीक है। they occur so that the active site fits precisely around the substrate, ठीक है। it wraps it around, ठीक है। इस तरह की ये इस तरह करके आगे आ गया,
ठीक है, the substance induces the active site to change the shape. ठीक है, so this was your active site. जो depression है बेटा, इसने अपना shape change किया. ठीक है, the reaction will take place and the product being a different shape to the substrate moves away from its active site. क्योंकि देखो substrate का ये shape था और product आपका बिल्कुल different है. The active site then returns to its original shape. So different hypotheses है बेटा. One is the lock and key, one is the induced fit. So आजकल जो ज्यादातर लोग जिस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, they accept the induced fit theory. ठीक है, but it doesn't mean कि ये वाली गलत है. कुछ लोग इसको भी फॉलो कर रहे होते हैं. ठीक है, but induced fit generally आजकल ज्यादा acceptable है. So do you understand the difference between the two? ठीक है, इसके आगे भी और भी डिटेल्स है, क्योंकि हम बाकी चीजें जब पढ़ेंगे ना, तब हम फाइनली अब बात करेंगे कि लॉक एंड की में क्या लिमिटेशंस है और इंड्यूस के क्या एडवांटेजेस हैं. तो वो एज अ लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन हम करेंगे जब हम सारे इसके टॉपिक्स कर चुके होंगे. ओके देन. अच्छा, अब इंड्यूस फिट के बेटे फायदे क्या है जनरली. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट कि व्हाई डू पीपल एक्चुअली प्रेफर दिस वन. So we just talked about कि yes, the substrate comes, it binds to the enzyme's active site. So you can see the diagram. The shape of the active site changes. It moves the substrate closer to the enzyme. We also saw that in the diagram. अच्छा, amino acids are molded into the precise form. Amino acids में इसी की बात कर रहे हैं, active site के जो amino acids हैं, ठीक है, they are molded into the precise form. Enzyme wraps around substrate to distort it. ठीक है, so these are induced fit में. If they ask you if the substrate binds, so what happens to the active site? So this is what happens. अच्छा, induced fit की वजह से what happens बेटा? This lowers the activation energy. Do you recall बेटा what is activation energy? It's the energy required for I don't know exactly. I know what it is, but I don't remember how to define it exactly. Start होने के लिए you need a boost. So initial energy हमें चाहिए बेटा, that is activation energy. ठीक है, तो क्या करती है, जो उस एनर्जी को एंजाइम क्या करता है बेटा, लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी. सही है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल कि एंजाइम का ये फंक्शन है बेटे. तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन लॉक एंड की एंड इंड्यूस्ड फिट, तो फिर आपको इन टर्म्स पे उनको जस्टिफाई करना होगा आंसर. सो एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स. ठीक है, एंड यू गेट अ वेरी फास्ट रिएक्शन. ठीक है, सो ई बेटा स्टैंड्स फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट. This is enzyme substrate complex. You get a product and the enzyme it is recycled. Enzyme is never used in the process. ठीक है, वो सिर्फ speed up करता है process को. You get the enzyme back which can be recycled. ठीक है बेटे. So this is the reaction. Clear बेटे? Let me see. ठीक है, so हमने lock and key डिस्कस किया, हमने induce fit डिस्कस किया. ठीक है, यहाँ पे देख लो induce fit की इन्होंने एक डायग्राम आपको दिखा दी है. तो see, this is the substrate. ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने आपको दिखाया है कि this is the enzyme. ठीक है, so once the substrate comes here, तो देखो दोनों यहाँ पे भी देखो थोड़ा डायमेंशन में डिफरेंस है बेटे. But once this substrate comes in, तो look at this part here बेटे. The active site actually बेटा molds its shape, not the बाकी rest of the enzyme is the same. सिर्फ active site बेटा it actually like wraps it around the substrate and it changes shape. तो active site change हो रहा है. ठीक है. After the what will happen because of this, the substrate will be pulled closer towards the enzyme. ठीक है, तो और एक्टिव साइट के करीब आ जाएगा. The reaction will happen. ठीक है, it will go back to its original place जो एक्टिव साइट होगा बेटे, and the product will be released. Got it बेटे? This is the induced fit model. ठीक है, okay then. एक ये और इन्होंने 3D स्ट्रक्चर बता दिया कि this was the original shape बेटे. ये एक्टिव साइट दिखे डिप्रेशन. ठीक है, हम इसको बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज अ सबस्ट्रेट, बट वंस द सबस्ट्रेट कम बेटा सी हाउ इट हैज कम क्लोजर. तो बिल्कुल जैसे सॉर्ट ऑफ ट्रैप कर लिया इसको अपने अंदर. ठीक है बेटे, तो दिस इज इंड्यूस्ड फिट. क्लियर हो गया? ओके देन. सो अगेन बेटा इफ दे आस्क यू टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट द आइडिया ऑफ इंड्यूस्ड फिट एंड लॉक एंड की, सो जस्ट सी बेटे, दिस वन हियर दैट दे हैव शोन यू इज द लॉक एंड की. तो देखो एग्जैक्टली वही सेम शेप्स हैं. ठीक है, which are complementary to each other. So this is what they call as the lock and key. This was introduced by this M.L. Fisher was the person. ठीक है, ये इसकी hypothesis है. He suggested the active site and substrate were exactly complementary. ठीक है, but ये जो induced fit है बेटा, it has been proposed by Koshland. He proposed that induced fit hypothesis suggests that active site
and substrate are only fully complementary after the substrate is bound. ठीक है, so दोनों में ये difference है. वो ये कह रहे हैं कि exactly complementary जब भी ये fit हो रहे हैं, and this other person जो induced fit वाला he says कि they only become complementary after the substrate is bound. So initially better look at the substrate, look at the depression, but once the substrate will come in बेटा, ये active site जो होगी बेटा, it will actually wrap around it, and only then बेटा it becomes this, they become complementary to each other. ठीक है बेटे, ठीक है, और बाद में लेटर इनका फंक्शन सेम है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट, फिर बाकी चीजें सेम हो जाएंगी इसकी. ठीक है, बट हमने एक और चीज क्या पढ़ी कि इंड्यूस फिट एक और काम कर रहा था, इट वाज लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, अब हम पॉइंटर डिफरेंसेस अभी एक दो चीजें और है, हम डिस्कस कर ले, फिर हम पूरे पॉइंट्स एक साथ इसके डिस्कस कर लेंगे. बट बेसिक समझ आ गया बेटा इंड्यूस फिट और लॉक इन की का. ठीक है, अच्छा, सो ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वी डिस्कस कि यस इट क्या कहना चाहिए, जो आपके एंजाइम्स हो रहे हैं दे आर डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. सो एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, दे स्पीड अप द रिएक्शन, they reduce the activation energy to start a reaction between the molecules. So for example बेटा अगर यहाँ पे इन्होंने ये जो तुम्हें रेड कलर की नजर आ रहा है कर्व, let's say ठीक है, this is your reactant here. ठीक है, तो let's say बेटा right now it is at level 50 पे है ये. ठीक है, और यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो it is at 100. So it took it around बेटा 50. ठीक है, इसकी एक्टिवेशन अगर जब मैं इसकी अगर ओरिजिनल एनर्जी देखूं तो ठीक है अराउंड 50 है, और लेट्स से बेटा यहाँ हमने एंजाइम इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हो सकता है बेटा ये 70 पर आ गया. तो व्हाट डू यू थिंक बेटा, हाउ कितनी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम हो गई है ओरिजिनल के मुकाबले में? अगर ये 100 थी एंड इट हैज कम टू 70 नाउ फ्रॉम 50, तो कितना डिफरेंस आ गया है? It was 100 and then it came to 70 to 50, or I understand. देखो 50 पे था, ठीक है, इसको रिएक्शन को स्टार्ट करने में हमें 100 पर हम एनर्जी हम लेके गए. ठीक है, स्टार्ट करने पे 100, मगर बाय द टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस द एंजाइम, नाउ वो 70 पे ही स्टार्ट हो गया हमारा रिएक्शन. तो हमने एनर्जी रिड्यूस की ना, एनर्जी जाया होने से बचाई है. एक्टिवेशन एनर्जी में यही कर रहे हैं ना हम लोग, जो इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा यूज हो रही है उसको कम कर दिया. तो जो जिस चीज को होने में 50 पॉइंट्स लग रहे थे, क्योंकि 50 टू 100 भी का डिफरेंस 50 है, अब वो 70 पे स्टार्ट हो गया. इट मीन्स 20 के अंदर ही, मतलब मुझे मेरे ये जो 30 किलो जूल है वो तो सेव हो गया ना एनर्जी का, क्योंकि अब वो 70 पे ही रिएक्शन स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करी मेरे जो एंजाइम्स आपका, इट इज रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सबस्ट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. ठीक है, the reaction may not take place in absence of enzymes. ठीक है, because again enzyme beta are specific to each function, and then enzymes catalyze a reaction at maximum rate at an optimum state. तो हर रिएक्शन की ऑप्टिमम स्टेट डिफरेंट होती है, किसी में एक पर्टिकुलर पीएच यूज हो रहा होगा, कहीं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा होगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बेटा ऑप्टिमम स्टेट्स होती है. ठीक है, कुछ एंजाइम्स है जो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कुछ एंजाइम्स होंगे जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं. ठीक है, तो एवरी रिएक्शन इज स्पेसिफिक. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, ये एक और डायग्राम बताइए, तो जस्ट हैव अ लुक एट इट बेटा. दीज आर द रिएक्टेंट्स, दिस वाज द एक्टिविटी बेटा विदाउट एंजाइम, दिस इज विद एंजाइम. ठीक है, एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. सो दिस इज क्लियरली टेलिंग यू कैन एंजाइम वाज यूज्ड. ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी वाज डिक्रीज्ड. इनिशियली हमें इतनी चाहिए थी, इट वाज डिक्रीज्ड नाउ. ठीक है, और प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली आपको सेम मिलेंगे. ठीक है, सिर्फ ये वाली एनर्जी कम हो गई. क्लियर हो गया बेटे? ओके, अच्छा, अब रिएक्शन रेट्स के अंदर बेटा जो 2-3 एग्जांपल्स है बुक के अंदर. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन किस तरह हो रहा है? बिकॉज आपका जो जब ग्राफ बनता है बेटे, तो वी नो कि एनर्जी इज देयर अलोंग द वाई एक्सिस. ठीक है, दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट व्हिच इज एक्चुअली बेटा द टाइम. ठीक है, हाउ लॉन्ग इट इज टेकिंग फॉर द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट. ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? तो हम बेटा या तो हम देखेंगे रिएक्टेंट्स को कि whether the reactants are decreasing in amount, or we will look at the products बेटा whether the product is increasing in amount.
ठीक है, तो हम इन दोनों चीजों को देख के अंदाजा लगाते हैं कि रिएक्शन किस तरह हो रहा है। ठीक है, सो फ्यू एग्जांपल्स दैट आर इन योर बुक। ठीक है, दे आर सेइंग इट इज इजी टू मेजर द रेट ऑफ catalase हाइड्रोजन peroxide रिएक्शन। सो एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, catalase इज द एंजाइम और हाइड्रोजन peroxide जो बेटा इज द रिएक्टेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन peroxide को बेसिकली ब्रेक डाउन अगर हमें करना है, हाइड्रोजन peroxide इज H2O2। ठीक है, इसको तुम्हें ब्रेक डाउन करना है वाटर एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर। ठीक है, सो द एंजाइम दैट वी आर यूजिंग इज catalase। ठीक है, so this is what they are saying. So let's see if it's balanced or not. अगर मैं इसको 2H2 कर दूं, so we get हाँ same, सही है। So catalase enzyme, ठीक है, इस रिएक्शन को वो कर रहा है। ठीक है, अब now the thing is बेटा one of the products is a gas, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेटा जब रिलीज होगी, ठीक है, तो आपके पास आप किस तरह उसको कलेक्ट कर सकते हैं? either you can use a syringe to collect the gas, ठीक है, but every time बेटा like you cannot like measure this, हर दफा चीज आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में दे हैव गिवन यू अनदर एग्जांपल। ठीक है, सो दे आर सेइंग इफ यू वांटेड टू इन्वेस्टिगेट द रेट ऑफ व्हिच amylase breaks down starch, सो अभी सिंपली फर्स्ट पैराग्राफ में दे आर टेलिंग यू कि व्हाट कैन यू डू इफ यू आर लुकिंग एट हाउ द प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म, और स्टार्च की आपको यहाँ डेफिनेशन दी है कि इफ यू वांट टू लुक एट द सबस्ट्रेट या यू वांट टू लुक एट द रिएक्टेंट, तो उसकी आगे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। So they are saying it would be very difficult to observe the course of reaction because the substrate or starch and the product remain as colorless substances. तो कभी-कभी जब reactant और product दोनों ही colorless है, तब भी आप identify नहीं कर पाओगे कि product ज़्यादा बन रहा है या substrate ज़्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है? So they have shown you ways to find that out. They're saying the easiest way to measure the rate of this reaction is to measure the rate at which starch disappears from the reaction mixture. So अब आप या तो फोकस करोगे कि आपका रिएक्टेंट को क्या हो रहा है, या आप फोकस करो आपके प्रोडक्ट को क्या हो रहा है। ठीक है, बिकॉज दे आर सेइंग कि रिएक्शन मिक्सचर में बोथ ऑफ देम बिकम कलरलेस। सो दे आर सेइंग कि अब अगर या आप या रिएक्टेंट पे फोकस करो या प्रोडक्ट पे, आप देखो कि इज द रिएक्टेंट डिसअपियरिंग एट अ क्विकर रेट। ठीक है, सो इन दिस एग्जांपल दे आर सेइंग यू सी द स्टार्च डिसअपियर्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सैंपल्स फ्रॉम द मिक्सचर at known times, because this is what we are looking at बेटा कि कितना टाइम लग रहा है आपका प्रोडक्ट को बनने में। ठीक है, and you add a small amount of iodine in potassium iodide, because you know बेटा स्टार्च का रिएक्शन जब आयोडीन के साथ होता है तो वो ब्लू ब्लैक सोल्यूशन बना देता है। ठीक है, अब स्टार्च इटसेल्फ इज कलरलेस, तो वो कह रहे हैं कि सैंपल के अंदर से यू टेक स्टार्च, ठीक है, और आप उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते रहे। ठीक है, सो इफ यू सी ब्लू ब्लैक कलर, क्योंकि शुरू में बेटा जब तक स्टार्च ज्यादा होगा वो डार्क होगा, और आहिस्ता आहिस्ता कलर अगर कम होना शुरू हो जाएगा ना, इट मींस स्टार्च यूज होता जा रहा है। ठीक है, देन दे आर सेइंग यूज अ कलरीमीटर, यू कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू ब्लैक कलर ऑब्टेन एंड यूज दिस एज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टार्च स्टिल रिमेनिंग। ठीक है, देन यू आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ। ठीक है, एंड देन यू विल सी बेटा हाउ मच स्टार्च वाज यूज्ड या हाउ मच रिएक्टेंट वाज यूज्ड। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ पे इन दिस केस सबस्ट्रेट आपका कलरलेस था, तो आपने उसके साथ एक इंडिकेटर यूज कर लिया। ठीक है, उस आयोडीन सोल्यूशन के थ्रू हमें पता चल रहा है, क्योंकि जब तक स्टार्च मौजूद होगा बेटा इट विल बी क्लियर ब्लू ब्लैक सोल्यूशन, मगर जैसे से स्टार्च कम होता जाएगा बेटा उसकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। दिस इज हाउ वी विल नो कि हमारा रिएक्टेंट यूज हो गया सारा। इज दिस क्लियर बेटा? ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने आपको दिया, ये तो हमने देखा कि जी रिएक्टेंट हमने देख लिया। अब लेट्स सी बेटा व्हाट हाउ कैन यू सी द प्रोडक्ट। So they are saying it is even easier to observe the course of this reaction if you mix starch, iodine. So तीनों चीजों को कहना हम एक साथ ऐड कर लें, starch, iodine and potassium iodide solution. ठीक है, and amylase in a test tube. So all of the things, enzyme, starch and everything. ठीक है, and then you take regular readings of color of the mixture in this one tube. ठीक है, but again they're saying this is not ideal because the iodine interferes with the rate of reaction and slows it down. So measuring reaction rate is generally better not easy. ठीक है, तो either you look at how much reactant is being used, या अगर इस केस में बेटा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो you use a syringe to measure the exact volume of oxygen. ठीक है, this is how you will know कि how much product is formed, how much reactant is being used. We're going to be looking at an enzyme, amylase. Amylase is an enzyme that breaks down starch. We're going to try and find out what its optimum pH is today. So optimum means the best pH that it'll work at.
So if you come in, I'll show you the equipment that we're using. So first of all, we need 2 centimetres cubed of amylase. We're going to use a syringe to do this, to be really accurate. So we add that to a test tube. And we're going to follow that up by adding our pH of choice. Now we're going to use pH 2. So you add 1 centimetre cubed of pH 2 in a different syringe and add that to your mixture. Okay. The next thing that you're going to do is you're going to allow them to mix, and you're going to add a drop of iodine to each dimple in a dimple tray. Now, we're using iodine because iodine turns black when starch is present. So, as the starch breaks down, the colour should change from black back to a brown colour. Okay. We're going to take our mixture from before and we're going to add 2 centimetres cubed of starch. As soon as I've added 2 centimetres cubed, I'm going to start my stopwatch because the amylase will have started to work and we'll be starting to break down the starch into sugar. I'm going to leave the stopwatch there. Next thing that we're going to do is every 20 seconds we are going to add some of our mixture to a dropper, to a dimple. As you can see, it's turned black because the starch is present. We're going to add another drop to the next dimple in another 20 seconds. Over time, what will happen is the colour will change from blue or black to brown again. Okay, welcome back. So, we left this for a little while. We've been doing it for 2 minutes and 20 seconds. And as you can see, as the time has gone on from 20 to 40 to 60 to 80 to 100, 120, 140 seconds, the colour has changed until there is no more blue. That means all of the starch has been broken down by the amylase. So we're going to record this time and we're going to repeat the experiment with several different pHs. As you can see, we've got pH 2 here, but we're going to use some others all the way up to pH 14 if you want. Now, we're going to plot our results on a graph, plotting time against pH. And as you can see, you will get this sort of curve. Okay? Now, as you increase the pH, the time will decrease because it will take less time for the enzyme to break down the starch. This point here at the bottom is the quickest time. This is the optimum pH. As you can see on our graph, it is 7. For different enzymes, it's different. That means all the starch is broken down very quickly. After pH 7, you can see that the line starts to increase again and time starts to increase. This is because your enzyme has denatured. That means that the active site has changed and will no longer be able to break down the starch molecules. In an exam question, you may be given, instead of a time graph, a rate graph, which will be the opposite way around. But the same idea still applies. So your optimum pH is still going to be the one where you get either a peak or a trough. Okay, thank you. ठीक है बेटे. अच्छा, coenzyme सिर्फ एक general example इसकी समझ लो. Coenzymes बेटे generally they are attached to the enzymes, ठीक है, but they do not take part in the reaction. वो simply बेटे act करते हैं as a carrier molecule. ठीक है, simply they act as carrier molecule. ठीक है, so they are not permanently bound to the enzyme. They may be temporary and loosely attached. ठीक है, so जब तक रिएक्शन होगा, कैरियर मॉलिक्यूल का मतलब फॉर एग्जांपल बेटा किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है, तो दे कैन कैरी द हाइड्रोजन एटम एंड टेक इट टू समवेयर एल्स वेयर इट इज नीडेड. ठीक है, जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे A2 के अंदर, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बेटा देयर आर 2 कैरियर मॉलिक्यूल्स, एक होता है NAD और एक होता है FAD. ठीक है, इनिशियली बेटा बोथ ऑफ देम आर एज एन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, मगर क्या होता है वंस इन द रिएक्शन दे एक्ट एज कैरियर मॉलिक्यूल्स, दे एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम their substrates. तो जब वो हाइड्रोजन को कैरी करते हैं बेटा, they do not convert, they simply carry this hydrogen
और उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट पार्ट मतलब डिफरेंट उसके स्टेप्स होते हैं. तो दे कैरी दिस हाइड्रोजन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन. तो सिंपली बेटा दे कैरी दिस हाइड्रोजन, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं. तो दिस इज व्हाट कोएंजाइम्स डू. They do not take part in the reaction. They simply carry different atoms or ions there. ठीक है बेटे? And then they are recycled. So एक दफा अगर for example ये हाइड्रोजन इन्होंने जहाँ पे देनी थी डंप कर दी, वापस they will become oxidized and they can go and recycle. ठीक है? This is what coenzymes do. ठीक है बेटे? Okay. Now बेटे let's look at, क्योंकि अब आपके जो investigative questions आ सकते हैं. How temperature, ठीक है, affects the enzymatic activity. So again, अब इसमें जब आपको reasoning देनी है बेटा, you have to talk about in terms of kinetic energy. You have to talk about in terms of collision between the molecules or particles. ठीक है? So increase in temperature increases the kinetic energy. So more enzyme substrate complexes will form. So that's obvious बेटा. You have an enzyme, you have a substrate. जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे बेटा ज्यादातर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे. ठीक है? सो दिस विल हैपन. बट व्हाट हैपेंस बेटा, सी देखो 0 से शुरू हो रहा है, बट सी बेटा वंस इट रीचेस 37, यहाँ इन्होंने एक नॉर्मल ह्यूमन आपको टेम्परेचर दिखाया है. ठीक है? टेम्परेचर विल बी डिफरेंट. ठीक है? अगर कोई प्लांट है जो इसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर में ग्रो हो रहा है तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल अलग होगा. ठीक है? ह्यूमंस का आपको टेम्परेचर दिखाया कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37. नॉर्मल हमारे जो बॉडी के फंक्शन है बेटा, हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है. तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग अलग होंगे. तो एज यू आर सीइंग बेटा, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंक्रीजिंग, मोर एंजाइम सबस्ट्रेट्स आर फॉर्म्ड. ठीक है? 37 डिग्री सेल्सियस बेटा इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर देयर. अच्छा, देन यू सी बेटा वंस द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे आप देखो अब 37 से बेटा इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर. बट इवन बेटा इफ यू नोटिस ये फॉरन सडन ड्रॉप नहीं हो रहा है. ठीक है? ग्रेजुअली नीचे नीचे आ रहा है. ठीक है? इट डजंट मीन कि यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो रही है. हो रही है बेटा, बट इट देन बिकम स्लोअर. ठीक है? 60 पे आके वो बिल्कुल ड्रॉप करा है उसने. ठीक है? तो एंजाइम भी जब डीनेचर होते हैं बेटा वो स्लोली हो रहे होते हैं. ये नहीं कि फॉरन नीचे 37 से आगे टेम्परेचर चला गया तो डीनेचर हो जाएंगे. ठीक है? तो कुछ वर्क करते रहेंगे, कुछ डीनेचर होंगे, बट उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी. ठीक है? और जैसे ही जैसे फिर वो नीचे आने लगेगी, यहाँ पे आगे 60 पे आगे उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ड्रॉप हो गई है. ठीक है? सो हाई टेम्परेचर बेटा विल कॉज डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन किस वजह से होती है? बिकॉज एंजाइम्स बेटे जो है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ अटैच हुए हैं. सो दीज बॉन्ड्स ब्रेक. ठीक है? दीज बॉन्ड्स आर होल्डिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर. सो दे कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड बेटा. हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं या आयोनिक बॉन्ड्स हैं. दे ब्रेक डाउन. Because of that, the active site is altered. ठीक है? And but if the active site is altered, you know, substrate is actually attaching to the active site. अगर इसका shape alter हो गया, substrate cannot bind to it, and no more enzyme substrate complexes will form. ठीक है? So this is the effect that temperature can have on the enzyme. Is this clear बेटे? तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो rate of reaction against temperature. Is this clear बेटे? ओके. ठीक है? सो लेट्स अब इसकी डिटेल देख लेते हैं. इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है बेटा? इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट. ठीक है? जितनी स्पीड बढ़ेगी देयर विल बी मोर कोलिजंस, यू विल हैव मोर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है? हियर दे हैव गिवन यू अ रेंज फ्रॉम 0 till 42. रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. इट मींस जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा. ठीक है? एक जनरल बात की यहाँ पे आपने. बट व्हेनेवर बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, वहां पे हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर के यूजुअली अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस. बट अबव 42 इन अ ह्यूमन बॉडी बेटे द एंजाइम विल बी डीनेचर्ड ड्यू टू हेवी वाइब्रेशन दैट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड. द एक्टिव साइट शेप विल चेंज. इट विल नो लॉन्गर बाइंड टू द सबस्ट्रेट. नो मोर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस विल बी फॉर्म. ठीक है? और डेफिनेटली बेटा वो डैमेज हो गया एंजाइम. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बेटा व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. डिक्रीज टेम्परेचर में क्या होगा बेटे? देखो एक्टिविटी होगी, ऐसे नहीं कि नहीं होगी, बट एंजाइम्स बिकम लेस एंड लेस एक्टिव. ठीक है? कोलिजंस कम हो जाएंगी ड्यू टू रिडक्शंस इन द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट. ठीक है? बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे, वो डीनेचर नहीं होंगे. डीनेचर वो सिर्फ और सिर्फ कब हो रहे हैं बेटा? व्हेन द टेम्परेचर इज टू हाई, इट इज ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड. कम टेम्परेचर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पे कुछ नहीं हो रहा है. एंजाइम्स आर सिंपली बिकम इनएक्टिव.
ठीक है, एंड दे विल रीगेन देयर फंक्शन व्हेन दे रिटर्न टू द नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है बेटे, so this is the effect that increase or decrease temperature can have on the enzymes. Okay, so एक दफा और इस ग्राफ को देख लो, यहाँ इन्होंने आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर दिखाया हुआ है, ठीक है, और इसमें अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि जी लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और वो आपसे पूछते हैं इसके अंदर कि एंजाइम्स की एक्टिविटी सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे होगी, तो क्या तो जवाब दोगे इसका? At B. अच्छा, think again, look at the temperature. You're talking about the optimum temperature, right? हाँ, नहीं मैं ऑप्टिमम नहीं कह रही, एक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? Activity सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? Think of rate of collisions. Look at the temperature. At क्योंकि अभी भी the देखो highest 60 पे temperature. 60 पे उन्होंने ड्रॉप C. नहीं किया इसको नीचे, ठीक है, तो इसका आंसर सी सही। होगा आपका। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतनी एक्टिविटी ज्यादा होगी, अभी फिलहाल इन्होंने इसको ड्रॉप नहीं किया नीचे। ठीक है, तो रिमेंबर जब भी आपसे कोलिजन्स की बात करेंगे तो थिंक इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ऑप्टिमम मैक्सिमम वो यहाँ पे सबसे बेस्ट वो काम इस जगह पे कर रहा है बी पे, ठीक है, मगर उसके बाद भी बेटा उनकी एक्टिविटी जो भी, क्योंकि सारे के सारे एकदम डीनेचर नहीं होते, ठीक है, जो बचे भी हैं उनकी एक्टिविटी फिर भी ज्यादा होगी यहाँ पे। ठीक है, इवेंचुअली ऑल ऑफ देम विल डीनेचर अगर टेम्परेचर इतना ही बढ़ता गया साथ साथ। ठीक है, बट जनरली फिर ये होता नहीं है, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी भी है बेटा तो वो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको फीवर भी है फिर टाइम के बाद वो चीजें वापस आ जाती हैं, कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, अच्छा, so we talked about temperature. Now let's talk about beta what pH can do to an enzyme. So deviations from optimum pH cause a decrease in the enzyme activity. ठीक है, अब रिमेंबर बेटा कुछ आपके ऑप्टिमम ये है, ठीक है, एक स्लाइटली अल्कलाइन पे हमारी बॉडी सही काम कर रही है, बट देयर विल बी सम एंजाइम बेटा दे आर वर्किंग एट एसिडिक एनवायरनमेंट, और कुछ ऐसे होंगे जो अल्कलाइन पे कर रहे होंगे। ठीक है, सो एक्सट्रीम्स हैं आपके पास। So small deviations change the charge on the active side. We are talking about the charge beta क्योंकि pH है बेटे, ठीक है, it will change the charge on the active side and affect the binding of the substrate. जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे हम कह रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन द एक्टिव साइड आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। pH में क्या हो रहा है, द एक्टिव साइड का चार्ज चेंज हो रहा है। ठीक है, larger deviations can cause the hydrogen and ionic bonds holding the tertiary structure together to change। ठीक है, और ज्यादा डेविएशन होंगे तो उसका पूरा एंजाइम का जो अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा बेटे। एंजाइम डीनेचर्स मीनिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस कैन नो लॉन्गर फॉर्म। ठीक है, सो अब देखो टेम्परेचर का, देखो टेम्परेचर थोड़े से आहिस्ता 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 बढ़ता हुआ ऊपर गया था एंड देन इट केम डाउन, और पीएच के अंदर बेटे सी लुक एट व्हाट हैपेंस इन पीएच आल्सो। ठीक है, पीएच के अंदर भी एज द पीएच इज इंक्रीजिंग, ठीक है, द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, दिस इज द ऑप्टिमम, बट वंस बेटा इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग तो आपका एंजाइम यहाँ पे डीनेचर हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ जो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों में, बस यहाँ पे अगेंस्ट हमने पीएच प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना स्मॉल डेविएशंस होंगी तो यहाँ पे एक्टिव साइड स्मॉल डेविएशन से चेंज हो रहा है, लार्ज की वजह से क्या हो रहा है, एंजाइम का टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्लियर बेटे? Okay, ठीक है, so extreme pH levels will produce denaturation. The structure of the enzyme is changed. A pH value slightly different from enzyme's optimum value. Sorry, at pH value slightly different. Small changes will take place in the enzyme. अगर slight difference है बेटे, ठीक है, and ठीक है, what will happen? Small changes in the charges of the enzyme will occur. तो enzyme और substrate दोनों में. And this change in ionization will affect the binding with the active site. Slight difference में ये हो रहा है। ठीक है, the same graph they have shown you here. And यहाँ पे आपको दिखाया बेटा इन्होंने 3 different enzymes आपको दिखाए। ये पेप्सिन है जो स्टमक में होता है, ठीक है, the one that is released in the gastric juice। ठीक है, this is acidic and then better look at the pH. So around 1 till 4 इसका pH है और optimum देखो this around 2। ठीक है, देन जो रेड आपको शो किया बेटे दैट इज अमाइलेज जो स्टार्च को कैटलाइज कर रहा होता है। ठीक है, तो स्टार्च के लिए जो अमाइलेज है बेटे सो लो किए एक नॉर्मल आपका जो बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर अराउंड 7 पे कर रहा है इसको।
ठीक है. देन अनदर एंजाइम बेटा यू सी के वो अल्कलाइन सिचुएशन के अंदर कर रहा है, सो दिस वैल्यू इज अराउंड 10 और 11. ठीक है. सो डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है, एक्ट एट डिफरेंट पीएच. सो पेप्सिन एसिडिक पे है, आर्जिनेज जो है बेटा वो बेसिक पे है, और अराउंड न्यूट्रल पे बेटा ये आपका स्टार्च स्लाइवली एमाइलेज जो काम कर रहा हो. ठीक है. तो हर एंजाइम के लिए उसका डिफरेंट पीएच है, उस पे वो ऑप्टिमम काम करेगा. ठीक है बेटे. ठीक है. अब नाउ लुक एट द ग्राफ के ग्राफ कैसे बनेगा. सेम बेटा जैसे हम कह रहे थे द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बेटा टू द टेम्परेचर, सो द सेम इज द केस हियर. ठीक है. अब हम बात करें, हमने टेम्परेचर की बात कर ली, हमने पीएच की बात करी. नाउ लुक एट द एंजाइम कंसंट्रेशन. एज द एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस सो विल द रिएक्शन रेट. सो इट्स ऑब्वियस बेटे, क्योंकि अगर एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट होगी, जितने ज्यादा एंजाइम्स होंगे उतनी ज्यादा एक्टिव साइट्स होंगी, उतने ही ज्यादा उसमें सबस्ट्रेट आके अटैच हो सकते हैं. ठीक है. इफ मोर सबस्ट्रेट्स आर अटैचिंग, मोर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्मिंग आल्सो. सो एट अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम द रेट रिमेन्स कांस्टेंट. सो अब अगर वाइस ऐसा हुआ बेटा कि आपके पास एंजाइम ज्यादा हैं बट आपके पास सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक बेटा विल हैपन? विल द रिएक्शन बी फास्टर और विल इट बी स्लोअर? Faster. देखो एंजाइम ज्यादा है मींस यू हैव मोर एक्टिव साइट्स बट यू हैव अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ सबस्ट्रेट. तो सोचो क्या होगा बेटे? Then it will be constant. हाँ, क्योंकि आपका सबस्ट्रेट जो है बेटा इट हैज बिकम द लिमिटिंग फैक्टर नाउ. ठीक है. लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? द रिएक्टेंट दैट एक्चुअली इज यूज्ड अप फर्स्ट. तो अगर एंजाइम से बहुत ज्यादा मगर सबस्ट्रेट इतने है ही नहीं कि उसमें जाके एक्टिव साइट के अंदर लगेंगे, तो आपका जो रिएक्शन होगा बेटा इट विल बिकम कांस्टेंट, विल मतलब प्रोसीड नहीं करेगा वो आगे, इट विल नॉट इंक्रीज. ठीक है. सो इफ यू हैव, अगर अब इसी कंडीशन में यू ऐड मोर ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, देन यू कैन हैव वही आपका सिचुएशन वापस आ जाएगी, यू कैन इंक्रीज द रिएक्शन. ठीक है. सो वेरी हाई कंसंट्रेशन एंजाइम द रेट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. तो क्योंकि सबस्ट्रेट अगर खत्म हो गया तो अब आपका यही वाला जो कर्व है बेटे इट माइट लुक समथिंग लाइक दिस. अगर यही है तो इवेंचुअली बढ़ते 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 फिर वो यूं हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि आपका सबस्ट्रेट खत्म हो गया. ठीक है. सो यू विल गेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस. ठीक है. सो दिस इज व्हाट दे हैव शोन यू है, इट्स प्रोपोर्शनल. ठीक है. हम एज्यूम यही करते हैं कि आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बट बिकॉज अगर दोनों की वैल्यू सेम होंगी बेटा, देयर आर मोर एक्टिव साइट्स, द रिएक्शन वुड बी फास्टर. ठीक है. इज दिस क्लियर बेटा? सो एंजाइम्स are proportional to the rate of the reaction until there are more substrates than the enzyme presence. ठीक है. Okay, so rate of reaction increase हो रहा है, substrate binds to the active site, but more enzymes are available. Rate increases only if more substrate is added. Eventually, better the curve becomes constant, no increase rate. Substrate occupy all the active sites. ठीक है. Adding more substrate won't yield more product as no more active site is available. तो पिछली जो हम सिचुएशन देखे थे यहाँ पे बेटा क्या था, आपके पास ज्यादा एंजाइम्स थे, सबस्ट्रेट खत्म हो गए थे. ठीक है. ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास सबस्ट्रेट ज्यादा है और आपके पास एंजाइम कम हो गए. तो व्हाट डू यू थिंक देन व्हाट विल हैपन देन बेटे? सबस्ट्रेट ज्यादा और एंजाइम कम है, अब क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन को? It will decrease. ठीक है. क्योंकि बेसिकली अब सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट ही नहीं कि वो बाइंड करे. तो अगेन ये होगा, शुरू में जब तक दोनों की वैल्यू सेम होंगी बेटे आपका ग्राफ ऐसे ही जाएगा. ठीक है. बट देन ठीक है, द मोमेंट बेटा देयर आर मोर सबस्ट्रेट्स एंड देयर इज लेसर एंजाइम, अगेन बेटा कांस्टेंट की तरफ चला जाएगा. ठीक है. उसमें फिर यही आपने और एंजाइम ऐड कर दिया तो फिर आपकी रिएक्शन दोबारा सेट हो जाएगी. ठीक है बेटे. तो टोटल बेटा 5 फैक्टर्स होते हैं. ठीक है. सो टेम्परेचर, ठीक है, कैन आल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द एंजाइम एक्टिविटी. पीएच कैन हैव द इफेक्ट. ठीक है. उसके अलावा बेटा एंजाइम कंसंट्रेशन, देन वी हैव सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. ठीक है. और लास्टली बेटा कैन बी इनहिबिटर्स. सो दीज आर 5 फैक्टर्स, ठीक है, दैट कैन एक्चुअली बेटा हैव एन इफेक्ट ऑन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. ठीक है. सो ठीक है, राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन.
ठीक है, and the Michaelis-Menten constant based on that. ठीक है, तो substrate concentration basically let's understand it from this aspect here. देखो, we'll look at the graph also. The other day we talked about these terms. We talked about Vmax, ठीक है, and we talked about Km also. ठीक है, so in fact let's go to this part here. ठीक है, remember बेटा, whenever we are talking about Michaelis-Menten constant, we are talking in terms of substrate. ठीक है, so remember that बेटा, क्योंकि आपके आंसर्स बहुत स्पेसिफाइड होंगे, so you have to use this term. अच्छा, अब इसमें what is happening here बेटे, see बेटा, this is the आपका ये substrate concentration दिखाइए starting from 0 and it is going all the way to 0.2, and here they have shown you the rate of reaction. Rate of reaction beटा is nothing but it simply tells you the speed of reaction, how fast is the reaction proceeding. So basically बेटे, what is happening here in this case is, ठीक है, whenever you have a very small concentration here, ठीक है, of substrate, क्योंकि देखो अब कोई भी सिस्टम है, आपको वहां पे रिएक्शन कराना है, you need to have enzymes, you need to have the substrates also. So let's see बेटा, मैं आपसे कहती हूँ कि इस सिस्टम में let's say we have, हमने शुरू में 10 enzymes रखे हैं, so 5 and 1 2 3 4 5, ठीक है, एंजाइम की कंसेंट्रेशन फिक्स्ड है, ठीक है, बट जैसे ही रिएक्शन शुरू होगा बेटे, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वहां पे जो सबस्ट्रेट है, they get attached to the active site, या they bind to the active site and the enzyme substrate complex forms. ठीक है, रिएक्शन होता है बेटा, कोई भी क्लोज कंपार्टमेंट है या क्लोज आपका वो है सिस्टम, उसमें आपके पास एंजाइम्स भी हैं, आपके पास सबस्ट्रेट्स भी हैं, कोलेशंस होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट जरूरी नहीं है कि फौरन के फौरन कंपाउंड्स बन जाए. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, लेट्स से बेटा इनिशियल केस में ओनली वन ऑफ द सबस्ट्रेट लेट्स से बाइंड्स टू इट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने 0 से स्टार्ट किया है. ठीक है, तो शुरू में लेट्स से 1 और 2 सबस्ट्रेट जाके लग गए और आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. फाइन. अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे टाइम के बाद आप का जैसे एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो लेट्स से बेटे हम पहुंचे यहाँ पे Vmax. Vmax is the part बेटे when let's say you have the same enzymes, we have the same number, we had 10 enzymes. ठीक है, मगर अब इस केस में क्या हुआ बेटा, as we are also increasing the concentration of the substrate, बेटा concentration substrate की बढ़ती जा रही है, तो इस स्टेज पे पहुंचने के बाद what is happening here is बेटा कि all of the enzymes, देखिए their active sites are actually बेटे binded to the substrate and they have this enzyme substrate complex. ठीक है, उसके अलावा ठीक है you have other substrate also now, ठीक है, but they cannot bind to the enzyme because all the enzymes are working at their maximum potential. ठीक है, this is what is known as Vmax बेटे. So Vmax is the part where enzymes are working at their hardest. ठीक है, at their hardest का मतलब बेटे the active sites are actually occupied with the substrate and you have more of the substrates right now. तो इस केस में हम जितना भी substrate बढ़ाते जाएंगे बेटे, it will have no effect as long as बेटा जब तक enzyme substrate complex बना के product में convert नहीं करता, it cannot bind to the other substrate. ठीक है, is Vmax clear to you बेटा? जी खुजैमा? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, फिर बात आती है बेटा Km की, which is the constant. अब सी है बेटे, Km we call it as half of the Vmax. So what is happening here बेटा, remember we had the same 10 enzymes, ठीक है, but हम इसको half Vmax क्यों बोलते हैं, इसका ये मतलब है कि at this stage 5 of the enzymes are actually better occupied with the substrate and still we have 5 more of them which can, their active sites are actually vacant. Okay, they can still attach to the substrate. So this will keep on like increasing as you increase the concentration of the substrate. ठीक है, शुरू में थोड़ी सी थी तो थोड़ा सा substrate जाके attach हुआ. As you keep on increasing the concentration of the substrate, तो थोड़ा और substrate जाके लग गया. ठीक है, then बेटा what happens? There will be a time then when all the active sites of the enzyme will be occupied. ठीक है, and even बेटा if you keep on increasing the substrate, nothing will happen. ठीक है, तो इस केस में बेटा अच्छा ऐसा नहीं हो रहा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, बट इट विल एक्चुअली लेवल ऑफ. ठीक है, लेवल ऑफ होने का क्या मतलब है बेटा, बेसिकली कि एज सून एज जैसे जैसे एंजाइम बेटा प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, एक दूसरा सबस्ट्रेट उसमें लग जाएगा. ठीक है, सो साइज जो है वो ऑक्यूपाइड ही रहेंगी. ठीक है, तो दिस Km बेटा, दिस हाफ Vmax is known as Km. This is what we call as Michaelis-Menten constant. ठीक है, अच्छा अब what does it tell you? इसकी वैल्यू हम कैसे करते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था 10 में से 5 यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, लेट्स से दिस इज द Vmax. सो व्हाट दे हैव डन इज बेटे, दिस एक्चुअली बेटे टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि बेटा एवरी सबस्ट्रेट विल हैव अ गुड एफिनिटी फॉर द एंजाइम. एफिनिटी का मतलब होता है लाइकिंग.
ठीक है, तो आपके पास एंजाइम भी, आपके पास सबस्ट्रेट भी है, बट एवरी सबस्ट्रेट इज डज नॉट नेसेसरीली मीन बट इट विल हैव अफिनिटी फॉर एंजाइम। कुछ प्रोडक्ट्स बनने में टाइम भी लगेगा, कुछ प्रोडक्ट बहुत तेजी से बन जाते हैं, ठीक है। तो मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट आपको क्या बताता है कि आपका Km की जो वैल्यू है जितनी कम होगी, हम वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटे, वी एक्चुअली बेटे लुक एट द पीक। हमारा ये जो कर्व है बेटे, यार एक्चुअली देखो हम इसकी स्टीपनेस तुम देख रहे हो यहाँ से, इफ यू लुक एट दिस पार्ट हियर, ठीक है। So this is the steepness. So what we do बेटा, इसकी half of the peak पे we actually calculate the value like this. आपने vertically या y axis से rate of reaction को लिया, ठीक है, you connect it to this part of the curve and then बेटा you drop it down along the x axis. हम basically Km पे क्या देख रहे हैं, we are looking at the concentration of substrate, ठीक है। Km is the substrate concentration. It is the concentration of the substrate at which V max is half. ठीक है, तो जितनी कम ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस इफ यू सी इट इज लेस देन 0.01 से भी कम लग रही है, ठीक है, जितनी कम ये वैल्यू होगी इट मींस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, ठीक है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। मगर अगर फॉर इंस्टेंस लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर, लेट्स से हमारा कर्व कुछ इस तरह करके बन रहा होता, ठीक है, कुछ इस तरह करके हमारा कर्व बन रहा होता, एंड इफ आई वुड हैव बेटा ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन, let's say let me use a red one. अब let's say मेरी peak यहाँ पर अगर आ रही है, तो I would draw a line here and then बेटा I would drop it down here. तो यहाँ पे देखो अब मेरी substrate की concentration ये है, ठीक है। so अगर आपका rate of reaction, ठीक है, it is there, but it means बेटा अगर तुम इन दोनों को compare करो, इसको compare करो, इसको compare करो, तो यहाँ पे rate of reaction is higher, rate of reaction is faster in this case, ठीक है। यहाँ पे it is increasing but rate of reaction is slower, ठीक है। तो आपकी ये value substrate की concentration अगर ज्यादा आ गई है, it means बेटे if the Km is more, it means there is low affinity between the enzyme and the substrate, ठीक है। तो ये reaction होगा but it will take time for the products to be made. Do you get it बेटी? Yes ma'am. समझ आई मिकेलिस मेंटन की, ठीक है। तो इसके अभी हम आगे जाके क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में वो मिकेलिस मेंटन का पूछे, मेक श्योर बेटा यू राइट अबाउट हाफ Vmax, but at the same time make sure बेटा वहां पे substrate concentration का जरूर जिक्र करना, ठीक है। अराउंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो they will be looking for this. Okay then. अच्छा, इसके अलावा बेटा इसके MCQs के अंदर there is one more thing that they ask you. They also ask you about initial rate of reaction, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इस तरह का ग्राफ होगा, फॉर एग्जाम्पल just focus on the blue part here. तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का मतलब है बेसिकली सिंपली जैसे तुमने मैथ्स में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते थे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। तो बेसिकली यू आर एक्चुअली बेटर लुकिंग एट द ग्राफ, लेट्स से यहाँ चलो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, लेट्स यूज ब्लैक वन हियर, ठीक है। लेट्स से मैंने एक लाइन यहाँ पे, आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, देन यू लुक एट दिस वैल्यू, ठीक है, आपने देख लिया कि एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है, ठीक है। सो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, so whatever value you are getting बेटा, that is the rate of reaction. So generally initial rate of reaction is calculated for the first 30 seconds. इसको हम एक बेंचमार्क लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन शुरू होते हैं हमेशा बेटा सबसे आपका फास्टेस्ट रिएक्शन स्टार्ट पर ही होता है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्टार्ट पर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेटा इट गोज ऑन पीक, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपके एंजाइम बहुत ज्यादा है और सबस्ट्रेट कम है, तो रिएक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि कोलिजन होंगी सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में, ठीक है। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपके एमसीक्यूज में आता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट 30 सेकंड्स, ठीक है। एंड योर फॉर्मूला बेटा विल रिमेन द सेम, you will note the value at y-axis, you will note the value at x-axis and simply better divide them, ठीक है, and you will calculate that value. Got it बेटे? Is it clear? फॉर्मूला तुम्हारा पता है? देखो तुम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला क्या होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, y2 minus y1 upon x2 minus x1 मैथ्स में याद है क्या ये फॉर्मूला बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा मैथ्स के अंदर? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम y के 2 पॉइंट्स ले रहे होते हैं और हम x के 2 पॉइंट्स ले रहे होते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर यू कैन सिंपली टेक 1 पॉइंट आल्सो, यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट तो गिवन नहीं है बट y एक्सिस का तुमने पॉइंट ले लिया, ठीक है, क्योंकि हम जीरो से ही कर रहे हैं ना, तो अगर मैं चेंज निकालूंगी भी तो -0 करके आई गेट द सेम वैल्यू, तो यू कैन गेट द y वैल्यू एंड यू कैन गेट द x वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंस। तो जो अब जो रेशियो एक्चुअली कैलकुलेट कर, जो रेशियो आएगा वो आपका आएगा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, और इनिशियल रेट, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क यू जी 1 मिनट पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन है,
किसी और टाइम पे क्या है, बट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ही जनरली पूछा जाता है पेपर के अंदर. तो विल यू रिमेंबर दिस बेटे कि द हायर द Km, इट मींस Km की वैल्यू अगर ज्यादा हुई बेटे, it means there is less affinity between the enzyme and the substrate. And if the value of Km, which is half the Vmax, but it is smaller, it means there is high affinity between enzyme and the substrate. Will you remember this bit? Yes, ma'am. Now let's talk about whether these enzymes can be inhibited or not. So let's talk about this now. Acha, enzyme activity can be prevented by enzyme inhibitors. So enzyme inhibitors can attach to the active sites also, okay, and they can attach to another site different from the active site. So enzyme inhibitor ka simply matlab kya they will prevent the activity of the enzyme. So these are the molecules that bind to the enzymes that they inhibit. So again enzyme inhibitors भी specific होते हैं, ठीक है? हर एंजाइम के अंदर जाके नहीं लग जाएंगे, जैसे सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है बेटा, ये भी स्पेसिफिक है. तो दो तरह के आपके एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, कंपैटिटिव और नॉन कंपैटिटिव. कंपैटिटिव जो होते हैं बेटे, दे आर द वन जो सबस्ट्रेट की जगह लेते हैं, सबस्ट्रेट को अटैच होना होता है एक्टिव साइट पे. तो दे हैव द सेम स्ट्रक्चर एज द सबस्ट्रेट एंड दे वुड गो एंड अटैच टू द एक्टिव साइट, ठीक है? तो इनका पे कंपटीशन कंपैटिटिव इसीलिए बोले बेटे, देन दे आर कंपीटिंग विद द सबस्ट्रेट, ठीक है? या तो सबस्ट्रेट अटैच है एंजाइम के साथ तो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, मगर अगर इनहिबिटर जाके लग गया बेटे तो फिर वो फंक्शन आगे नहीं हो पाएगा. एंड अदर्स आर नोन एज नॉन कंपैटिटिव. नॉन कंपैटिटिव क्या कहते हैं बेटे, दे बाइंड टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट, और वो क्या करते हैं, उसका शेप ही चेंज कर देते हैं एंजाइम एक्टिव साइट का. सो व्हेन द शेप इज चेंज विद द सबस्ट्रेट कैन नॉट कम एंड अटैच टू इट. तो अभी हम आगे सारी इनकी डिटेल पढ़ते हैं, बट एंजाइम एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय दीस टू बेटे. सो इट कैन बी अ कंपैटिटिव इनहिबिटर, it can be a non-competitive inhibitor, ठीक है? So inhibitors generally क्या करें बेटे, they are preventing the binding of substrate to the active site, ठीक है? Therefore fewer enzyme substrate complexes will be formed. This would reduce the rate of reaction, ठीक है? enzyme inhibitors बेटे naturally भी होते हैं, ठीक है? naturally for example कोई metabolic process है, let's say polysaccharide बनाना है बॉडी को, ठीक है? मगर polysaccharide बनाने की भी एक लिमिट होगी ना, जब हमारी नीड पूरी होगी तो दैट फंक्शन हैज टू बी स्टॉप्ड आल्सो, ठीक है? तो वहां पे क्या होगा, इट विल बी स्टॉप नेचुरली, बट समटाइम्स ड्यू टू ड्रग्स और आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स वगैरह की वजह से भी दे आल्सो एक्ट एज इनहिबिटर्स, ठीक है? जैसे प्लांट में आपको कोई हार्मफुल केमिकल है दैट यू वांट टू, उसको हम रोकना चाह रहे हैं किसी भी वजह से, या वीड्स ग्रो हो रही हैं, तो वहां पे आप एंजाइम इनहिबिटर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है? So let's talk about them one by one. Competitive inhibitor क्या है बेटे? These are the inhibitors that have structure similar to the substrate, ठीक है? So competitive का structure बिल्कुल substrate के जैसे होगा. They will block the active site, ठीक है? But they will not react with the enzyme. सिर्फ जगह को block कर देंगे, react नहीं करेंगे. react सिर्फ substrate ही कर सकता है, ठीक है? एक example इन्होंने दे दिए, arabinose competes with glucose. So glucose is a substrate बेटे, उसकी जगह एक इनहिबिटर है एरेबिनोज. इट कम्पीट्स विद ग्लूकोज फॉर द एक्टिव साइट इन ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम. सो दिस इज एन एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ठीक है? असल में ग्लूकोज को उसके साथ जाके अटैच होना पड़ता है, ठीक है? बट ग्लूकोज की जगह दिस इज एन इनहिबिटर, so this is a competitive inhibitor, arabinose. It will go and attach to the active site, but it will not undergo any reaction. Simply active site को block कर देगा. समझे बेटे competitive inhibitors क्या होते हैं? Okay. So they have a similar shape to that of the substrate molecule. They compete with the substrate molecules to bind to the active site, but no reaction takes place. Instead of a reaction, they would block the active site, so no substrate molecule can fit in it. The level of activity inhibited depends on the relative concentration of inhibitor and the substrate. So definitely बेटा अगर substrate कम है और inhibitor ज्यादा है तो ज्यादा inhibitors जाके attach हो जाएंगे, ठीक है? High concentration of inhibitor means it will take up nearly all the active sites. Hardly any substrate will get to the enzyme. With lower concentration, the chances of substrate getting to the active site before the inhibitor increases. So that is also obvious बेटे, अगर substrate ज्यादा और inhibitor कम है तो substrate के फिर भी chances बढ़ जाएंगे. So in this case, अगर आपके पास competitive inhibitors हैं, we are going to increase the concentration of substrate, ठीक है?
So the rate can be increased up to a point, क्योंकि still inhibitors तो still वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, but you can उस reaction को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं if you're adding more substrates to it. So understood better the role of competitive inhibitors? Yeah. So यहाँ आपको उन्होंने इसकी diagram दिखा दिया. So let's just have a look at it. ठीक है, this is the enzyme. So आपको ये दिखाया है कि इसके अंदर क्या-क्या इसका जो actual substrate है, they are saying it's fumarate. ठीक है, but उसकी जगह these are 4 different kinds of competitive inhibitors that can attach. ठीक है, तो oxalate, oxaloacetate, malonate, glutarate. So they have given you 4. So all 4 of them are actually competing against this. So depending on कि बेटा कोई भी इसमें से कोई एक भी हो सकता है. So if it goes and attaches, it will simply block the pathway. No reaction will take place. But इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, जो असल substrate है, it is not getting attached. ठीक है बेटे, और जो हमें product चाहिए हमें वो नहीं मिल रहा. Sorry, this is a substrate. This is a substrate. Succinate substrate है, original. ठीक है, अगर ये नहीं attach हो रहा है, इसकी जगह ये comparative attach हो रहा है. So this is the product that we want. This product we will not get if these inhibitors get attached to it. ठीक है बेटे. So इनका अगर तुम shape देखो, उन्होंने आपको 2 diagrams दिखाई हुई है. ठीक है, so देखो इसका भी shape original से कितना मिलता जुलता है. This is the original one, succinate, and this is malonate. So because they have the same structure as the substrate, they will go and attach to the active site. ठीक है? And we wanted this product. अब ये product नहीं बन रहा because this competitive inhibitor has attached. Clear हो गया बेटे? Competitive inhibitor. Yes, no? Okay then. Let's move to non-competitive. ठीक है, अब non-competitive में क्या हो रहा है बेटे? It is inhibitor. It has no real structure similarity to the substrate. It binds to site other than the active site. So अगर for example आपका ये enzyme है बेटे, and it has this active site, ठीक है, तो it will bind to somewhere here. ठीक है, non-competitive would never go and bind to the active site. It binds to another space there. ठीक है, another area. यहाँ पे bind होता है, and then it causes conformational change that take place at the active site. ठीक है, और because of that बेटे जब इसका binding site का shape change हो जाएगा, तो जो भी substrate को आगे बेटे इसके अंदर लगना है, वो substrate cannot come and attach to it. So this is what a non-competitive inhibitor do. इसकी वजह से फिर reaction continue ही नहीं करता. Competitive में क्या था बेटे? अगर आपने substrate की concentration बढ़ा दी, तो then because competition तो दोनों में, तो substrate can come and attach to the active site. Non-competitive comes and attaches at a different site than the active site. It causes this active site to change its shape so that the substrate cannot attach to it. Okay? And there is no real structural similarity to the substrate. So you understand the difference between the two, beta? Okay? Acha. So they bind to the enzyme away from its active site. This causes the active site to change shape so that the substrate molecule cannot bind to it. They do not compete with the substrate, okay, to bind to the active site because they are of different shapes. Increasing the concentration of substrate does not affect the reaction rate. Enzyme activity is still inhibited. ठीक है, क्योंकि इसने जब shape ही change कर दिया beta active site का, तो हम जितना भी substrate add कर लें, ठीक है, nothing will happen then. But competitive के अंदर substrate increase करने से we can still better have the rate of reaction going on. Got the difference between competitive and non-competitive? ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने आपको इसकी डायग्राम देखी, so let's just have a look. So this is the original enzyme बेटा, ये उसकी एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा. ठीक है, अब what happens जो आपका नॉन कंपैटिटिव है, it comes and binds to an area which is different from the active site. ठीक है, this is where it binds. ठीक है, तो जब तक तो ये इनहिबिटर नहीं अटैच होता, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस विल फॉर्म. ठीक है, यू विल गेट द प्रोडक्ट. बट तो ये और ये शुरू का दिखाया इन्होंने. ठीक है, इफ इट इज नॉट बाउंड एट ऑल, ये जगह वेकेंट है. बट इफ इट कम्स एंड अटैचेस टू द एंजाइम it will cause conformational change here. तो see बेटा, this is how it look like. इसकी डिप्रेशन पहले ऐसी थी and look at the shape now बेटे.
अब ना, और आपका जो सबस्ट्रेट है इज एग्जैक्टली द सेम, अब इट इज नाउ बेटा फिटिंग हियर, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन बेटे, नाउ दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस एट ऑल. सबस्ट्रेट जैसा था, अगर लगेगा भी जाके स्टिक करेगा, बट इट विल गो आउट एज इट इज, देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर्म. ठीक है. सो ये चीज दिखाई आपको नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर की, इट बाइंड्स टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट. गॉट द डिफरेंस बेटे बिटवीन कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव? ठीक है. और अब दोनों की साइड बाय साइड तुम डायग्राम देख लो, ये कंपैरेटिव है, ठीक है. दिस इज द लाइक कंपैरेटिव इनहिबिटर बेटे दैट हैज द सेम शेप. देखो एंजाइम की तो डिप्रेशन ये होगी, ठीक है, बट इफ यू लुक एट दिस सबस्ट्रेट की तुम देखो और तुम इसकी देखो, तो ये सिंपली यहाँ पे फिट हो गया. इट इज नॉट लेटिंग द सबस्ट्रेट अटैच टू इट. सबस्ट्रेट आएगा भी, अगर ये ऑलरेडी फिट हुआ बेटा, इट विल सिंपली जस्ट मूव अवे. ठीक है. बट इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट दे कैन कंपीट मोर. अब दोनों क्योंकि रिएक्शन तो हो रहा है बेटे, मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग, तो अगर सबस्ट्रेट अटैच हो गया एंजाइम से तो यू विल गेट द प्रोडक्ट. बट नॉन कंपैरेटिव में दिस इज द इनहिबिटर बेटे, इट गेट्स अटैच्ड और उसने उसका शेप ही चेंज कर दिया. अब अगर ये शेप था सबस्ट्रेट का, तो see but it has changed this, brought about this conformational change here. Now the substrate cannot bind and it will simply be a move away. No product will be formed. तो यहाँ पे आप substrate increase भी करोगे, nothing will happen. Got the difference between the two बेटे? ठीक है. और this is how बेटे their graphs look like. Competitive में बेटा क्या होता है कि if there is no inhibitor, ठीक है, तो आपका इस तरह कर्व जा रहा है कि तेजी से you are getting the product. And finally बेटा we will get a constant rate because enzyme या substrate, ठीक है, हो सकता है एंजाइम कम हो जाए, सबस्ट्रेट कम हो जाए. बट कंपैरेटिव इनहिबिटर में क्या होता है बेटा, इनिशियली इसका रेट कम होगा, ठीक है, बट इफ यू इंक्रीज द सबस्ट्रेट, देखो यहाँ पे उन्होंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिखाई है, इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यू कैन गेट द सेम ग्राफ बैक बेटे, यू कैन गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स. बट नाउ कंपेयर विद नॉन कंपैरेटिव, दिस वाज इनिशियल व्हेन देयर इज नो इनहिबिटर. बट इसमें क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने के बावजूद भी बेटे यू आर नॉट गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर सपोज्ड टू गेट. दोनों में कितना डिफरेंस आ गया. बट कंपैरेटिव में यू कैन एक्चुअली मैनेज इट बेटे, you can increase the substrate concentration, you can get the same amount of products there. तो इनके ग्राफ में ये डिफरेंस है बेटे. अंडरस्टूड? ओके. और वो दोनों को उन्होंने एक में ही करके दिखा दिया. So this is the normal. Competitive में बेटे you can get the same product if you increase the substrate concentration, but non-competitive में nothing can happen even if you increase the substrate concentration. एक ही ग्राफ में उन्होंने तीनों आपको दिखा दिया थी. ओके. अच्छा, लास्ट है बेटा इसके अंदर फीडबैक इनहिबिशन. तो रिमेंबर बेटा वी टॉक्ड अबाउट के मेटाबॉलिक रिएक्शन बेटा, फॉर एग्जांपल बॉडी को सिग्नल मिला है कोई चीज बनाने का, ठीक है, तो सबस्ट्रेट विल कम अटैच टू द एंजाइम एंड प्रोडक्ट विल फॉर्म. बट बेटा वंस द एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म और लेट्स से बेटा हमें जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए तो वो मिल गई है, तो दिस रिएक्शन हैज टू स्टॉप आल्सो. तो अब ये तीसरा किस्म का इनहिबिशन है, उसको हम बोलते हैं एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन. हमने पढ़ा कंपैरेटिव इनहिबिशन, नॉन कंपैरेटिव, एंड दिस इज द एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन. ठीक है. सो दीज आर द इनिशियल रिएक्शंस. लेट्स से बेटा दिस इज एंजाइम ए और ये इसका ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, इट अटैचेस टू द एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, यू गेट अ प्रोडक्ट. ठीक है. और एंजाइमेटिक रिएक्शन बेटा यू नो कि देयर आर कैस्केड ऑफ रिएक्शंस. एक एंजाइम दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, वो दूसरे को करता है, वो तीसरे को करता है. सो हियर दे हैव शोन यू this is one product, ठीक है, then this becomes a substrate for another enzyme, it gets attached to this enzyme, you get another product बेटे. this product becomes a substrate for a third enzyme. ठीक है. अब इसके बाद एक बन गया end product. let's say बेटा you got the required number, what will happen now, this end product will go and attach to this side बेटे. again वो as a non competitive inhibitor काम कर रहा है. it binds to the site, it doesn't bind to the active site, it binds to the site other than the active site, बिल्कुल जैसे नॉन कंपैरेटिव कर रहा था. ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन बेटे, द शेप कंफर्मेशन चेंज हो जाएगी यहाँ पे, द सबस्ट्रेट कैन नो लॉन्गर अटैच टू इट. यू गेट इट बेटे. तो नॉन कंपैरेटिव इस तरह भी काम. अच्छा, दिस इज अनदर टाइप ऑफ बेटा फीडबैक इनहिबिशन. ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई हार्मोन लेट से बनाना था बॉडी को, ठीक है, ड्यू टू एनी स्टिमुलस. ठीक है. अब उस रिएक्शन को उस हार्मोन को बनाने के लिए बेटा सबस्ट्रेट हैज टू अटैच टू दिए आपका शुरू का एंजाइम है, ठीक है, एंड अ सबस्ट्रेट हैज टू बेटा बाइंड टू इट. सो दिस इज द सबस्ट्रेट, इट बाइंड्स टू द एंजाइम
ठीक है, you get the enzyme substrate complex and you get a product. ठीक है, enzyme cascade reaction के अंदर क्या होता है बेटा, a number of different enzymes are there which get activated one by one. तो इस enzyme से जो product बना बेटा, it can become a substrate for another enzyme. ठीक है, तो it will have complementary shape to the next enzyme. अब यहाँ पे enzyme substrate complex बन गया, you get another product. This product can also act as a substrate for the third enzyme. ठीक है, अब इस थर्ड एंजाइम के बाद बेटा you get the final end product. अब फॉर एग्जाम्पल बेटा जो हार्मोन हमें बनाना था वो हमें उसकी एग्जैक्ट अमाउंट मिल गई है, ठीक है, एंड वी हैव टू स्टॉप दैट. अब क्या होगा, दिस एंड प्रोडक्ट विल गो एंड अटैच टू द नॉन एक्टिव साइट, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर कर रहा था. ठीक है, इट अटैचेस हियर, इट कॉजेस कन्फॉर्मेशनल चेंज एट द एक्टिव साइट. नाउ द सबस्ट्रेट कैन नो लॉन्गर अटैच टू इट. वो सबस्ट्रेट बेटा जिसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, हमें हार्मोन बनाना था, the substrate got attached to different enzymes. ठीक है, you got a number of products और आखिर में you got the end product. अब ये end product बेटा is acting as a non-competitive inhibitor. ठीक है, और इसकी वजह से वो pathway inhibit हो जाएगा, you will no longer get the hormone. Got it बेटे? ये चीज समझ आई बेटे? ठीक है, ओके. सो दिस इज नोन एज एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन. और हम इसको यही जस्ट बेटा जो नॉन एक्टिव साइट होती है ना, हम उसको एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं. दिस साइट हियर which is away from the active site, it is also known as allosteric site. ठीक है, so activity of some enzymes is controlled by certain molecules binding to a specific regulatory or allosteric site on the enzyme distinct from the active site. Different molecules can inhibit or activate the enzyme. ठीक है, only a few enzymes can do this, and they're often at the start of a long biochemical pathway. They're generally activated by the substrate of the pathway, inhibited by the product of the pathway. ठीक है, तो एक्टिवेट बेटा ऐसे ही हुए थे पीछे, जैसे हमने देखा सबस्ट्रेट एक्ट हुआ, ऐड हुआ था बेटा, तो ये एक्टिवेट हुए थे, और इसी के अंदर बेटा जब ये जाके प्रोडक्ट बाइंड हो गया तो वो डीएक्टिवेट हो गया प्रोसेस. ठीक है, सो लुक एट द लूप बेटे, दिस इज द नेगेटिव फीडबैक लूप. ठीक है, गॉट इट बेटे? तो एक और इसकी ये डायग्राम है, so just have a look at it. ठीक है, ये आपको इनिशियल सबस्ट्रेट दिखाया बेटे which binds to an enzyme. E1 दिखाया enzyme. So initial substrate binds to enzyme, you get different compounds. ठीक है, this is the product. This product serves as a substrate for this enzyme. You get another product. This product acts as a substrate for this enzyme. You get third product. और third एक और enzyme के साथ attach हुआ बेटा, you get the final product. ठीक है, when you get the desired amount, this final product will go and attach to the allosteric site. ठीक है, allosteric site वो is the site which is different from the active site. वहां पे bind होके बेटा, it will cause it to change its shape so that no longer the substrate can come and attach to it. So it will act as an end product inhibition. ठीक है, so competitive inhibition हमने पढ़ी, और नॉन कंपैरेटिव के अंदर हमने एक एग्जांपल एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन की पढ़ी, व्हिच इज एक्चुअली बेटा यूजफुल फॉर द बॉडी आल्सो. ठीक है, यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल किया जा रहा है, बट नॉन कंपैरेटिव के अंदर ड्रग्स वगैरह भी यूज हो सकती है इफ यू वांट टू इनहिबिट एनी रिएक्शन. ठीक है, इट कैन बी अ पॉइजन आल्सो. ठीक है बेटे, और एक और एग्जांपल दिखा दी, जस्ट एक नजर इसको देख लो बेटे. ठीक है, समझ आ गया तो बता दो, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन देन. डन, अंडरस्टूड? यस. ओके, ठीक है. अच्छा, अब तो मैंने शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था बेटा, आई सेड कि दे कैन आस्क यू लिमिटेशंस ऑफ लॉक इन की. तो अब क्योंकि हमने बेटा कंपैरेटिव नॉन कंपैरेटिव सब डिस्कस कर लिया है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट वन मोर टाइम. ठीक है, व्हाई? बिकॉज देयर आर टू हाइपोथेसिस, लॉक इन की है, दूसरी इंड्यूस फिट है. सो अब इंड्यूस फिट को लोग ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट कि बेटा व्हाई, व्हाट आर द लिमिटेशंस देयर इन लॉक इन की. लिमिटेशंस क्या है बेटे? इट डज नॉट इजीली एक्सप्लेन हाउ एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड. और इफ यू कैन रिकॉल बेटे, इंड्यूस फिट में क्या हो रहा था? when this substrate was fitting here at the active site, the active site was actually better wrapping it around the substrate. Remember, conformational change was being taking place, and the substrate was like brought in closer to this enzyme. Okay, so this was actually lowering the activation energy. Lock and key is not able to explain this part, bit. Got it, bit?
It also does not explain the role of competitive inhibitors. Remember competitive inhibitors में हम लोग क्या कर रहे थे कि substrate जो है जो competitive inhibitors है, they have the same structure as that of the substrate. तो lock and key में इस चीज का कोई जिक्र नहीं है. Likewise बेटा it does not easily explain the role of non-competitive inhibitors. So ये limitations है lock and key mechanism. Understood बेटे? These three. Is it clear बेटे? Yes, no? Yes. Okay. अच्छा, और induced fit को क्यों prefer किया जा रहा है? It can explain how the activation energy is lowered. ठीक है? Because बेटा इसका reason क्या था? The stretching and distorting of bonds or causing the closer orientation of the reactive groups. So basically बेटा यही induced fit में this was your substrate, this is the active site, but बेटा look at the depression initially and then look at बेटा how curvy it has become now. ठीक है? Substrate आने की वजह से it wraps it around the substrate. ठीक है? तो changes कहाँ पर आ रही हैं बेटे? There is a stretching and distorting of the bonds or causing the closer orientation of reactive groups. और इसकी वजह से बेटे they are coming in closer to each other. ठीक है? This also explains how non-competitive inhibitors can bind to a region away from the active site बेटे, which is the allosteric site, and change its shape. तो यहाँ पे आपका जो induced fit है बेटा, it actually बेटा ये आपका जो ये वाला non-competitive inhibitor है, inhibitor can come and bind to a site which is other than active site. This is explained by the induced fit model. उसका reason क्या है बेटा? It also talks about the conformational change in the active site. क्योंकि inhibitor भी आके this is what it was doing. ठीक है? और ये चीज lock and key में नहीं describe हुई हुई है. So this explains how non-competitive inhibitor can bind to a region other than the active site, changes shape so that substrate cannot bind to the active site. ठीक है? Likewise, बेटा, it also explains how competitive inhibitors can bind to the active site or molecules with similar shapes to the substrate. तो competitive inhibitors भी अगर इसके अंदर आएंगे बेटे, तो उसके अंदर भी the same way बेटा, it will wrap it around. ठीक है? And it will simply just उसको pass इसके कर लेगा, but reaction will not happen. ठीक है? So ये सारी competitive, non-competitive, ठीक है? और this distortion of the active site बेटे, this all is explained by the induced fit model. As well as activation energy, lowering of activation energy. ये सारी चीजें lock and key नहीं बताता. ठीक है? तो इसलिए this is the preferred method. So if they ask you what are the limitations of lock and key बेटे, so these are the limitations. और advantages क्या हैं बेटे उसके आपके induced fit के, तो आप इन सारी चीजों को elaborate करके लिखोगे. You will talk in terms of activation energy, you will talk in terms of competitive and non-competitive inhibitors. जब आप induced fit को बताओगे. Understood the difference बेटे? और लास्ट बिट बेटा ये है जो आपका एक सवाल आता है अक्सर immobilizing enzyme का. ठीक है? This is the example in our book also, पेपर में भी पूछते हैं आपसे. Lactose intolerance basically है क्या? ठीक है? Lactase is an enzyme बेटे. ठीक है? इसका basic purpose क्या है? It splits lactose. Lactose is the milk sugar. ठीक है? और वो lactase इसको split किस चीज में करता है? Into beta glucose and galactose. So कुछ लोग होते हैं बेटे जिनकी बॉडी में lactase enzyme होता ही नहीं है. ठीक है? So those people have lactose intolerance. So because of that बेटे they can have diarrhea क्योंकि वो हजम ही नहीं हो रहा था दूध उनको. So this enzyme is actually बेटे not there in their body. So इसका basic purpose क्या बेटे? Splits lactose into beta glucose and galactose. Lactose intolerant person lacks this enzyme. ठीक है? So because there is no enzyme बेटे, lactose itself will not be digested nor absorbed. तो ऐसे लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते. ठीक है? So what happens because of that बेटा? High level of soluble lactose remain in the small intestine. क्योंकि बेटा इसका ब्रेकडाउन तो वही नहीं है. ठीक है? So it remains in the small intestine. Because of that, ठीक है, large population of bacteria can grow. It can ferment lactose into producing gas. It can cause abdominal discomfort. ठीक है? And because बेटा lactose, there is a solute there. So water potential becomes negative because solute potential ज़्यादा हो गया है. Lactose is more there. Water, because the water potential becomes negative, water moves into the small intestine. ठीक है? And this will better lead to diarrhea. ठीक है? So जिन लोगों में lactase नहीं होता बेटे, they will have this constant episodes of diarrhea because of क्योंकि lactose वहाँ पे digest ही नहीं हो रहा है. ठीक है? They will have बहुत ज़्यादा abdominal discomfort होगी. ठीक है?
बहुत ज्यादा गैसी होंगे वो लोग, एंड अडल्ट रेयरली, बड़ों में ये एंजाइम बनता भी नहीं है, ठीक है। और फिर जीन जो होता है इट इज स्विच्ड ऑफ इन एडल्टहुड। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट्स, ठीक है बेटे। सो दिस इज जनरली व्हाट हैपेंस। अब इस चीज को दूर कैसे किया जाता है? सो दिस एंजाइम लैक्टेज कैन बी इमोबिलाइज यूजिंग एल्गिनेट बीड्स। तो ऐसे लोगों के लिए बेटे स्पेशली, अब क्योंकि अगर उन्हें मिल्क देना भी है, उन्हें न्यूट्रिशन देनी भी है, तो उनको ऐसा मतलब मिल्क देंगे विच इज लैक्टोज फ्री, ठीक है, क्योंकि मिल्क के अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। सो हाउ डू वी रिमूव दैट लैक्टोज फ्रॉम द मिल्क, ठीक है। सो व्हाट इज हैपन, the enzyme lactase can be immobilized. So enzymes को immobilize, एक ऐसे beads होती है बेटा, उस beads के अंदर enzyme को immobilize कर दिया जाता है, ठीक है। Then milk is then allowed to run through the column of the lactose containing beads, sorry lactase containing beads. Beads है उसमें lactase enzyme already immobilized हुआ है, अब आप उसके ऊपर से milk गुजार रहे हैं. The enzyme will be like then come into action. It hydrolyzes the lactose into glucose and galactose. Milk is therefore lactose free, and it then can be used to make lactose free dairy products for those people who cannot digest lactose. Okay? So this is important bit. How enzymes, you can immobilize them and you can use them. Okay, enzymes generally better, they're very expensive. So once these beads are made, they can be reused again and again. क्योंकि enzyme किसी भी reaction में use नहीं हो रहा है. It is simply enhancing the reaction. The lactase क्या कर रहा है बेटा, उस lactose को break down करें to glucose and galactose. So immobilized enzymes are more tolerant of the temperature changes and pH changes than enzymes in a solution. So that's another bit a plus point for that. They may be partly because their molecules are held firmly in shape by the alginate in which they're embedded, and so they do not denature easily. Okay? It is also because parts of the molecules that are embedded in the beads are not fully exposed to the temperature of pH, क्योंकि बेटा वो उसके अंदर embed हुए होते हैं, so they are not exposed. Okay, so this is one example in your book how we can actually go for lactose free dairy products. Got it बेटे? और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया एंजाइम्स का, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बेटा हम लोग एमसीक्यूज और इसका पेपर 2 इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी, एंड देन बेटा उसी में फिर हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। 3 चैप्टर्स हमारे डन हो गए आज, ठीक है बेटा? ओके ओके बेटा, ठीक है, टेक केयर बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़। यू टू, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।